Okay. So yesterday we were doing half wave rectifier. Okay. So half wave rectifier is one kind of clipper. Okay. Clipper means clip which clips some portion of the circuit. Okay, we are applying some signal and diode act as a rectifier or it acts as a clipper. Okay, depending on how much what is the biasing, we can click some portion of the signal. Okay, so continuing those same thing, we'll do some problems more today. So we are given one circuit. We are given one resistance here. Resistance value is 10 kilo ohm. Okay, and this is here we have V input, okay, which can be positive, negative, and we have parallel one more circuit. Okay, so solving parallel clippers is very easy. Okay, we have some difficulty when we solve some clippers which are in series, but solving yesterday also we have done one problem and we can see the parallel clippers can be solved very easily. So it's 10 kilo ohm here, and here we have V output. Okay, so now the battery biasing value is given 5 volts and 5 volts. Yesterday also we have done same problem. Okay, now it's asking calculate V naught. Okay, what is the output voltage? Of course, in terms of V naught, in terms of V input. तो कैसे करेंगे इसको? Okay, so what is the value of V naught? V naught का वैल्यू क्या है? Okay, of course there will be ranges. Okay, like you have to draw transfer function, so of course there will be ranges. Okay, so from circuit you can see if I'm applying positive cycle. Okay, for positive cycle this diode is in reverse bias. This circuit is always open. Okay, this circuit is always open, and this circuit will conduct, this diode will conduct only when this V is greater than 5. Okay, and these diodes are given that cutoff voltage for these are ideal diodes. So cutoff voltage V gamma are given 0. V gamma is given 0. Okay, so obviously यहाँ पर -5 वोल्ट लग रहा है, यहाँ +5 वोल्ट लग रहा है, so you apply positive. Okay, so this will be again reverse bias. So positive cycle, this will be always reverse bias. Okay, and this will become a positive cycle, this will conduct only when voltage is greater than 5 volts. So in positive cycle what will happen? This is always off. This is always off, means whatever input you apply, that input you'll get in positive cycle. Okay, same thing in same thing happen in negative cycle. Negative cycle, this is always open because this is reverse bias, this is always open. Okay, and this will conduct only my V is greater than less than -5 volts. Okay, so that means my V naught will be V input. Okay, always my when voltage is between 5. Okay, when V input is less than 5. Okay, तो जो वोल्टेज लगाओगे, 4 -4 लगाया तो यहाँ -4 आ जाएगा, +4 लगाया तो यहाँ +4 आएगा. So V naught will be equal to, so V invert when my voltage is between -5 volts to +5 volts. Okay, now what happens when we apply V input less than -5 volts? Okay, तब क्या होगा? So माइनस साइकिल के लिए ये तो हमेशा ओपन है. Okay, if this is -6 volts. Okay, -6 का मतलब क्या है? This is minus, this is plus. Now reverse, I'm applying reversing. Okay, so in that case this diode will conduct. Okay, so in that case this will be short circuit. This will be short circuit, and what will the V output? So V output will be your
So now V output I'm taking this way, and this voltage is here plus minus. So this is negative. Okay, so this plus minus. So here we have plus, here we have minus. So V input will be minus. Okay, V input. So V input will be what? V input will be this 5 volt battery plus the voltage drop across this 10 kilo ohm. Okay, so suppose current is I. Okay, so I can write 5 volts. I is the current, and resistance is 10 kilo ohm. Okay, 10 kilo ohm plus 5 volts. Is this clear? ऐसा कर सकते हैं क्या? पहले डायोड थोड़ा सा साफ कर दूं. I into 10 kilo ohm plus 5. Okay, is volts. Now I का वैल्यू निकालो कितना है? Now you to calculate I value. So I value will be applying this circuit. Okay, अभी माइनस लगा रहा है. So say वो रेजिस्टेंस कितनी है? कौन सा वाला? ये भी 10 किलो ओम है. So this is my I will be what? Apply KVL minus V input. Okay, then current is going here, minus V input, then current 10 kilo ohm, 10 और 10 20 हो जाएगा. So 20 kilo ohm. Okay, I into 20 kilo ohm, this one, and then we have this is plus 5 volts equals to 0. So my I will become VI minus 5 upon 20 kilo ohm. Okay, so this is my current. Okay, VI, V input minus 5, 20 kilo ohm. So you can substitute the value here now. Okay, so my V output will become now minus I की value VI minus 5, 20, okay, kilo ohm into 10 kilo ohm plus 5 kilo ohm cancel 1, 2. Okay, so this become minus VI. Okay, यहाँ पे माइनस है क्या? Let's check it. We are starting here. So minus, this is minus. Okay, and this is plus, and this is plus. Okay, so I want I. So I, ये equation ठीक है? This equation is correct? Yes sir. सर ये आपने नेगेटिव साइकिल भी लिखा है ना? I have written this one. Suppose I am applying this way. Okay, so you minus. Okay, then this is plus. Okay, and this is also plus 20, and this will plus. Okay, so this is VI minus 5, 20 kilo ohm. Okay, so minus बाहर भी चल रहा है, तो कैसे गलती है सारा मेरा. So कितना आएगा अभी? VI. Okay, so this 2 VI by 2. Okay, minus 5 by 2.5 and plus 5. So this become minus VI by 2. Okay, ये प्लस का 2.5 बचेगा, 12 का माइनस का 2.5 हो जाएगा. So this is coming. Okay, minus VI by 2 minus 2.5. चेक करो ये सही आ रहा है कि कुछ मिस्टेक आ रहा है. Okay, we are applying negative cycle. Okay, so negative cycle means this should be same V input. Okay, now apply for positive cycle. सबका ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir, यही आ रहा है. Okay, now apply for positive cycle. Positive cycle में ये लेना, ये वाला लेना हमको. Okay, so we are applying this way. If you apply this way, okay, तो plus VI. Okay, करंट तो यहीं से जाएगा ना, करंट तो यहीं से जाएगा, तो ऐसे लेना पड़ेगा. 10 किलो ओम, 10 20. Okay, 20 plus 5. Okay, let me check. Okay, now apply for positive cycles. कितना आएगा? When you are, so this is my solution V naught. Okay, minus VI, V input by 2 minus 2.5 volts. And when VI is greater than my V, when V input is greater than 5 volts, तब क्या होगा?
तो कंडक्ट करेगा ना। तब ये कनेक्ट करेगा। ओके, तो ये कनेक्ट इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे सेकंड टाइम में। ओके, और यहाँ से मैं प्लस ही लगा रहा हूँ, तो ये प्लस है, ये माइनस है, पॉजिटिव 5 वोल्ट से। तो ओके, ओके, तो कितना आ जाएगा आपकी V नॉट। ओके, V नॉट विल बी इक्वल टू दिस वन, दिस 5 वोल्ट्स। ओके, प्लस I इंटू 10, आई डैश बोल दो 10 किलो ओम। और आई डैश कितना आ जाएगा, आई डैश आ जाएगा आपका, अगर मैं ये लगा रहा हूँ V माइनस माइनस प्लस। ओके, तो वी आई V इनपुट माइनस 5, ओके, डिवाइड बाय 20 किलो ओम, सेम ही आएगा पहले जैसे ही। सो नाउ इफ यू पुट द वैल्यू हियर, तो मेरा V नॉट कितना आ जाएगा, V नॉट विल बी, ओके, I नॉट। ओके, सो I नॉट विल बी वी आई माइनस 5 20 किलो ओम इंटू 10 किलो ओम प्लस 5। okay, so this should be Vi cancel by 2 plus 5 by 2. vi by 2, okay, minus 5 by 2 और plus 2 by 5 ना, ये आ रहा है Yes, sir. vi। so this is your answer। Yes, okay, I have doubt in first thing। okay, first thing मैंने गलत कर रखा है क्या, first question में I am getting vi2 positive। okay, I may have done some mistake, minus plus how did I put, okay, I have maybe done a mistake। okay, so this was the first question। okay, now quickly we'll do similar kind of questions। okay, where you have to draw Sir. trans, हाँ Sir, what about -5 to +5 voltage? किसका, ये वाला? सर अगर -5 to 5 नहीं सर, अगर VI -5 to 5 था तब क्या होगा? तो -5 to +5 के बीच में निकाला ना, वी इनपुट आएगा ना, दोनों ही ऑफ हो गए, दोनों ओपन हो गए। तो कल की जैसे कल निकाला था वैसे वी इनपुट इक्वल टू वी आउटपुट। सर पहले तो आपने -5 to लो बिलो रखा सर VI को, हाँ, और फिर फिर अप टू रखा। फिर ग्रेटर देन रखा, ठीक है। हाँ और तो सर उसके मतलब हाँ, ग्रेटर देन में क्या इनके होगा ना, बीच में सर भी ग्रेटर देन में क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट कर जाएगा ना, ग्रेटर देन ये कनेक्ट कर जाएगा। तो अब आउटपुट कैसे? कितना है, ये 5 वोल्ट प्लस ये आई प्लस आई इंटू के। ओके, ये अच्छा हाँ प्लस सर, हाँ सर समझ गया सर। आई इंटू टे, ठीक है, आई और डैश सर और सर 5 वोल्ट के पहले आउटपुट 0 था ना। 5 वोल्ट के पहले कहाँ पे, IR तभी आउटपुट IR होगा सर। आई आर ना, यस कौन सर, सा यस सर समझ गया सर। कौन सा पूछ रहे हो बेटा, दूसरा सर सेकंड? पॉजिटिव साइकिल के लिए सर। हाँ, सर जब करंट नहीं कंडक्ट कर रहा होगा 5 वोल्ट से नीचे होगा, तब वी आउटपुट हम लोग क्या लेंगे सर, बैटरी भी कनेक्टेड है ना इस वजह से। भी अगर 5 वोल्ट से कम है, 5 वोल्ट Yes, से sir. 5 वोल्ट से कम है, तब क्या है भी, ये तो ऑलरेडी रिवर्स बायस में है, पहले भी रिवर्स बायस में था। हाँ हाँ, फिर 5 लगा, फिर और रिवर्स बायस में आ जाएगा, बस सर ठीक है। दूसरे वाले में कर दीजिए और सर। दूसरा वाला कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं हाँ करेगा, सर। तो जो बात जो है वो एज इट इज आ जाएगा, 5 के लिए 5 आ जाएगा, अच्छा ओके ओके सर। 5 के लिए 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये Yes, तो sir. बीच में है तो 5, तो इसको चाहो तो यहाँ लगा दो इक्वल, ये लगा दो, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। Now quickly do it, these questions, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके, अभी आज हम पैरेलल कर रहे हैं, पैरेलल बहुत आसान होते हैं, फिर कल सीरीज करेंगे। Now these are silicon diodes, so V cutoff is equal to 0.7, and this R and this is VI plus minus, okay, V input with can, so what are the transfer function, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, 0.7 के ऊपर कंडक्ट करने लगे। भाई जैसे ही ये पॉजिटिव, नेगेटिव में तो क्या हमेशा ओपन है, हाँ सर। नेगेटिव में इफ यू वांट वी आउटपुट हियर, नेगेटिव में हमेशा ओपन है, तो वी इनपुट इक्वल टू वी आउटपुट, ओके, क्लियर है। और पॉजिटिव में जैसे ये 0.7 हो जाएगा, तो यू विल ऑलवेज, यू कैन रिप्लेस दिस बाय बैटरी, ओके। जैसे ही ये ये वी 0.7 से ज्यादा है, ओके, ये वैल्यू साइनसॉइडल नहीं है, साइनसॉइडल तो नहीं है, पर जो भी है, चलो साइनसॉइडल ही कर दो। पॉजिटिव में तो ये शॉर्ट कर जाएगा ना सर। भी पॉजिटिव में ये 0.7 दे रखा है,
तो 0.7 करते ही शॉर्ट शॉर्ट कर जाएगा, फिर बैटरी भी आएगा साथ में, आपकी बैटरी आएगा। पहले क्वेश्चन में शॉर्ट शॉर्ट था क्योंकि बैटरी नहीं था, आपकी बैटरी भी आ जाएगा, तो आपका बैटरी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, सो बैटरी आ जाएगा आपको प्लस माइनस। तो आपको हमेशा v, जैसे वी आई 0.7 से ज्यादा है, ओके, सपोज ये वी यहाँ पहुंच गया, इस लेवल पे पहुंच गया, इधर थोड़ा कर देता हूँ, जैसे ही आपका जो वी आई है वो इस लेवल पे पहुंच गया 0.7 पे, ओके, तो आपका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स योर व्हेनेवर योर v इनपुट is 0.7, okay, you will get always constant, और उससे पहले क्या होगा, जो इनपुट लगाओगे बढ़ेगा लीनियरली। जो आएगा वैसे आएगा। ओके, तो दिस इज योर v इनपुट और v आउटपुट का ग्राफ है। क्लियर है सबको? सर Yes, sir. 0.7 से आगे Sir, में ये स्ट्रेट कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि शॉर्ट किया ना। हाँ, कांस्टेंट किया कि अब तो सर्किट में बैटरी आ गया ना, और v आउटपुट कितना जाएगा, बैटरी Yes, sir. पैरेलल बैटरी के, जो बैटरी है उतने आएगा। हाँ, ठीक है, और सर लेस देन में स्ट्रेट लाइन क्यों बना, मतलब लेस देन ऐसे- में, लेस देन में ये ओपन हो गया, ये सर ओपन हो गया। ओपन हो गया, तो अभी जो ये यहाँ कुछ करंट फ्लो हो रहा था, जो जो ये है वो इधर आ जाएगा, तो v आउटपुट इक्वल टू v इनपुट, तो जैसा जैसा तो y इक्वल टू mx, ओके, y इक्वल टू x। अच्छा, और ग्रेटर देन में तो इधर से करंट चला जा रहा है, हाँ ग्रेटर देन 0.7 में तो ये शॉर्ट हो जा रहा हाँ, है तो तो वोल्टेज कांस्टेंट आ रहा है, अक्रॉस द वोल्टेज आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अच्छा अच्छा, वी आई, ओके सर। ठीक है, नाउ आई एम मेकिंग इट रिवर्स। सी, इसके बाद में हमको क्लैंपर्स करना है, जेनर डायोड करना है। ठीक है, तो जेनर डायोड का जो एप्लीकेशन है मेनली रेगुलेशन में है, एंड दे आल्सो यूज फॉर क्लिपर एंड क्लैंपर्स। ओके, सो मेनली हमको सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, सो दिस इज प्लस माइनस, ओके, दिस इज माय v नॉट, दिस इज v इनपुट प्लस माइनस, एंड दिस इज माय r। ओके, इस सर्किट के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा बताओ? नेगेटिव 0.7 के बाद कांस्टेंट। नेगेटिव के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो जैसे ये पॉजिटिव में तो ओपन ही है, तो पॉजिटिव में तो जो करोगे वो वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में, नेगेटिव साइकिल में भी जब एनी मेकिंग दिस नेगेटिव, ओके, दिस नेगेटिव साइकिल में 0.7 तक तो ये कुछ करेगा नहीं, 0.7 तक तो ये ओपन ही है। ओके, तो ऐसे ही आएगा 0.7 तक तो। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा -0.7 पे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है ना? ओके, अब Yes. अब इसमें क्या करते हैं, दो डायोड जोड़ देते हैं से। भाई जब क्लिपर क्लैपर में क्या करते हो, आप इनपुट और आउटपुट साथ में ड्रॉ करते हो, तो उसकी जगह ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो, और उसको देख देख के तो इनपुट आउटपुट साथ में कर सकते हो। भी देखते हैं कैसे करते हैं, देखो। दिस इज D1, दिस इज D2, ओके, एंड दिस इज V नॉट। सेम क्वेश्चन चल रहा है, B गामा आपका चल रहा है 0.7 सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो और दिस इज योर V आउटपुट। अब कैसे होगा? सर दोनों ग्राफ का सुपरपोजिशन। हम्म, सर मतलब 0.7 के बाद कांस्टेंट और -0.7 के बाद भी कांस्टेंट। ठीक है ना। बी ये क्या है, बी इनपुट जैसे ही पॉजिटिव साइकिल के लिए ये तो हमेशा ओपन है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 0.7 पे शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको जैसे वैसे तो ओपन, वैसे तो ये भी ओपन है 0.7 से नीचे, तो यू विल गेट ऑलवेज सेम थिंग। ओके, दिस वे, ओके, सो यू गेट 0.7, 0.7, okay, this is V input, this is V output, okay, that means अगर मेरा सपोज मेरा इनपुट क्या साइन वेव है, कोई भी हो सकता है, मैं मान रहा हूँ साइन वेव है। ओके, तो मेरा V आउटपुट कैसा आएगा,
तो ये सपोज ये मेरा 0.7 लेवल है, 0.7, ओके, और यहाँ पर माइनस भी ये 0.7 है, दिस इज 0.7, 0.7। तो यहाँ तक तो जैसा जैसा है वैसा का वैसा आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर इसके नीचे फिर नीचे आ गया, तो फिर जैसा 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 ये है वैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है। सेम थिंग हैपन्स हियर, शुरू में जैसा है वैसा आएगा, और फिर जैसे 7 इस पॉइंट से आगे गया 0.7 से, दैट बिकम कांस्टेंट, ओके, दिस वन। सो इस तरह का ग्राफ आएगा। ये दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है? हाँ Yes, सर sir. दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, ठीक है, थोड़ा सिमेट्रिक बना लेना मेरा, ठीक है, मेरा ड्राइंग ऐसा ही है, तो यू जस्ट मेक इट सिमेट्रिक, ओके। तो अब ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ क्लिपिंग का, ठीक है ना। क्लिपिंग में पैरेलल सर्किट में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, पैरेलल सर्किट में बड़ा इजीली हो जाता है, ओके। सो थोड़ा सा उसमें केवीएल कैसे लगाना पड़ता है सीरीज में, दैट विल आल्सो सी। सो नाउ सपोज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का। वी हैव गिवन डायोड, okay, and this we have 5 volts battery, minus plus, okay, minus, and this is 5 volt battery, okay, and then this is V output। इसको ड्रॉ कर दो भैया, कैसा आएगा? ये कैसा आएगा? सर 5 वोल्ट के ऊपर से वो कंडक्ट करने लगेगा। नहीं, V कट ऑफ 0.7 भी दे रखा है, अच्छा 5.7 के ऊपर से कंडक्ट करने लगेगा। 5.7 में कनेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही 5.7 पहुंचेगा, ये 5.7 5.7, उसके बाद कनेक्ट कर देगा, और उसके नीचे हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में तो ये ओपन रहेगा ही रहेगा, वैसे ही इसको, वैसे ही ये रिवर्स बायस में और लगाओगे रिवर्स, और रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा 5.7, ठीक है। V आउटपुट, V इनपुट। सर ये नेगेटिव साइकिल में ओपन हो जाएगा ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन आया। हाँ, इसलिए y इक्वल टू x आ गया, v इनपुट इक्वल टू v आउटपुट आ गया। और Okay? ये 0.7 तो डायोड का है, 5 वोल्ट, तो 5.7 पे जब शॉर्ट मार रहा है ये। बीच कनेक्ट करेगा, तो डायोड तो आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, और एक बैटरी और आ पॉजिटिव जाएगा, साइकिल में। हाँ, और एक बैटरी आ जाएगा पॉजिटिव साइकिल में 0.7 का। तो ये 0.7 प्लस 5.7 आपको हमेशा सर्किट में मिलेगा वोल्ट्स। ओके सर। ओके सर नेगेटिव में तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, रिवर्स नेगेटिव, बायस में। हाँ, रिवर्स बायस में तो ये आपका जो इनपुट 5 है, वोल्ट कांस्टेंट रहेगा ना? हम्म, नहीं सॉरी, हाँ नहीं कुछ नहीं। नहीं, वो ओपन हो जाएगा, हाँ ओपन हो गया। ओपन हो जाएगा। Okay, now a circuit is given to us, okay, rectified type of questions है, we have an AC circuit, okay, and V input is given 24 sin omega t, okay, and we have a resistance here 100 ohm, then we have one diode, and then we have one battery here, plus here, plus minus, okay. This is my battery of 12 volts, okay. So, and V gamma, V cutoff, okay, V gamma is given 0. V gamma is given 0. This behaving like an idle diode, okay. You don't need to replace my battery. So he's asking 3 questions, okay. First thing, find the fraction of each cycle. Find the fraction of each cycle during which diode conduct. ओके, तो एक साइकिल में कितने फ्रैक्शन साइकिल के लिए
डायोड कंडक्ट कर रहा है। हम देखते हैं ना जब भी ये बायस लगाते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो कंडक्ट करता है, कुछ टाइम के लिए कंडक्ट नहीं करता है। तो पूछ रहा है कितने टाइम के लिए कंडक्ट करेगा, साइकिल के कितने फ्रैक्शन टाइम के लिए। ओके, एंड देन वी हैव पीक वैल्यू ऑफ डायोड करंट, पीक वैल्यू ऑफ डायोड करंट। Okay, and then maximum reverse bias voltage, maximum reverse bias voltage कितना होगा। okay, so we have given one input, okay, that is V input is given, okay, जिसका peak value है 24, okay, 24 volts. Now when we apply this signal V input equal to 22/4 sin omega t on this diode, okay, diode cutoff voltage is given 0, so this diode will conduct only when, okay, when it will conduct when my जब peak 12 से ऊपर होगा, पीक वोल्टेज 12 से ऊपर होगा तब ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो मेरा पीक करंट कितना हो जाएगा, पीक करंट आई निकालने के लिए पीक वोल्टेज देना पड़ेगा यहाँ पे, पीक वोल्टेज, ओके, पीक वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज जो भी बोलो, ओके, दिस इज पीक वोल्टेज -12 और रेजिस्टेंस कितना है, ये तो जब कंडक्ट कर रहा है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्ट कर रहा है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि वी कट ऑफ 0 दे रखा है, दिस विल बिकम अपॉन 100, ओके, सो 24 - 12 अपॉन 100, ओके, सो कितना बचा 12/100, दैट मींस 0.12 एम्पियर, ये तो मेरा पीक करंट रहेगा। ठीक है, और कंडक्ट कब करेगा, 12 वोल्ट के बाद। सपोज ये मेरा हाफ है, ये मेरा 12 वोल्ट है, तो जब यहां से वो कनेक्ट करेगा, समझ में आ रहा है। नेगेटिव में तो क्या, नेगेटिव में तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, मैंने अप्लाई नेगेटिव, अगर नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव में तो ये ओपन हो जाएगा, तो नेगेटिव में तो कनेक्ट करेगा ही नहीं। क्लियर है ना क्वेश्चन में, नेगेटिव साइकिल में तो ये क्लियर, नेगेटिव साइकिल में तो ये पूरा ओपन है तो कनेक्ट करेगा ही नहीं, तो यहाँ कुछ कनेक्ट करेगा ही नहीं साइकिल में। खाली जब इसका पॉजिटिव साइकिल में जब ये पीक मेरा जो वी इनपुट 12 हो जाएगा उस साइकिल में ये कनेक्ट करेगा, दैट मींस खाली इस टाइम पीरियड के लिए ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 12 आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो वोल्टेज है 12 वोल्ट इसीलिए ना, हाँ अभी यहाँ तभी पे मतलब भी है, सपोज ये पीक वोल्टेज है, ये यहाँ पर है 8 है 9 है, तो ये 12 से कम ही है तो कनेक्ट करेगा ही नहीं। जब ये 12 से ऊपर कंडक्ट जाए नहीं करेगा, मतलब करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा, 12 के बाद करंट जाएगा। ठीक है, 12 13 14 पे करंट जाएगा, और पीक करंट कब जाएगा, जब ये 24 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 24 कर दिया, 24 माइनस ये मेरा पीक करंट है। ठीक है, सो ठीक है, तो पीक करंट कितना 0.2, सो मैं इसी, ये तो मेरा वोल्टेज का वी इनपुट का ग्राफ है, एंड दिस इज माय आई करंट, इस करंट का ग्राफ है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0.12 एम्पियर। दैट मींस मुझे ये टाइम साइकिल निकालना है, ये टाइम साइकिल कितना होगा। ठीक है, से दिस इज ओमेगा t1 एंड दिस इज ओमेगा t2। अब ये दोनों सिमेट्रिक है, यहाँ पे जितना पोर्शन है उतना पोर्शन यहाँ पर है, सिमेट्रिक पोर्शन है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ओमेगा t1, कैसे निकालेंगे ओमेगा t1, ओमेगा t1 कैसे निकलेगा, ओमेगा t1 वो टाइम है जिसपे हमारा जो वी इनपुट है वो 12 हो जा रहा है, दिस इज 12 वोल्ट्स। ओके, सर इक्वेशन में पुट कर देंगे सर, बस और क्या, वी इनपुट की इक्वेशन है 24 sin ओमेगा t। ओके, किस टाइम पे ये मेरा वी इनपुट 12 हो रहा है, 12 24 sin ओमेगा, सपोज ओमेगा 1t टाइम पे हो रहा है, तो मेरा क्या sin ओमेगा 1t कितना आ जाएगा 12/24 sin pi by 1/2, तो ओमेगा 1t कितना आ गया, एंगल कितना आ गया मेरा 1/2 sin 30 डिग्री आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, और ये दोनों ये गैप सिमेट्रिक, ये 30 है तो ये गैप भी 30 का, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों साइड ग्राफ तो सिमेट्रिक है ना भाई। जैसे अभी ये 12 के नीचे है तो कनेक्ट नहीं करेगा, तो ये 12 से ऊपर है, 12 से नीचे है ये पोर्शन तो कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये पोर्शन भी 12 से नीचे है तो यहाँ कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो पोर्शन सिमिलर है, टोटल है 180, ये 30, तो ये कितना जाएगा 150, ओमेगा 2 कितना जाएगा, ओमेगा t2 150। ओके,
तो डिफरेंस कितना हो गया टाइम पीरियड, ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1 का डिफरेंस कितना हो गया 120 डिग्री। दैट मीन्स 150 कैसे है? भाई ये क्या है, ये तो पूरा पूरा 180 है, ये पूरा 360 है, और ये वाला कितना है 180 जी सर। 180 है, और ये कितना 30 है 30 है, तो ये गैप भी 30 होगा, तो 180 माइनस 30 कितना जाएगा 150। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अच्छे से ड्रॉ करूं। सर सर हाँ। दोनों तरफ 30 ओमेगा T1 30 है हम्म, और तो 180 माइनस 30 मैं इसको मैं 150। थोड़ा सा और बड़ा तो करके ड्रॉ सर कर, ये बड़ा कर, दोनों भी तो 30 होगा ना। भाई मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। भाई देखो ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है, और ये इसका हाफ है, ये 12 है, ये भी 12 है, तो ये पोर्शन तो सिमेट्रिक है ना, दोनों दोनों सिमेट्रिक है ना, सर Yes, दोनों sir. 30 है ना? तो ये 30 है, तो ये भी दोनों 30 है। ये भी 30 हो गया, ठीक है। हाँ तो 180 माइनस 60 होगा ना। सर तो 180 ये माइनस तो 60 होना चाहिए ना? अरे 180 60 मतलब ये क्या 30 है, ये कितना हो जाएगा 90, ओके, फिर ये पोर्शन कितना हो जाएगा 150, ये पूरा 180 है ना, 180 से 30 कम कितना होगा 150 नहीं होगा क्या। अरे भाई Yes, sir. ये 0 30 60 90 फिर 120 फिर 150 30, तो ये पॉइंट कितना है 150 तो है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। सर वन साइड का 30। Yes, अरे sir. तो अभी कभी कम थोड़ी कर रहे हैं, मैं तो पोजीशन बोल रहा हूँ, ये 0 ये 30 है, अभी सर निकाला मैं 30। पोजीशन पे ही बोल रहा हूँ। हाँ तो ये लास्ट वाली पोजीशन कितनी है 180 है, लास्ट Yes, वाली sir. ये Yes, sir. 180, तो ये 1 ये तो, और इनमें गैप 30 है, तो ये 150 नहीं होगी क्या भी, ये पोर्शन ये Yes, पोर्शन sir. 150 होगी। 150 हो गया ना बस, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा हमारा, हमारा डिफरेंस कितना आ गया 120, और पूरी साइकिल कितनी है, तो पूरी साइकिल है 360, 360 की 360 डिवाइड बाय 120, दैट मींस 33% टाइम के लिए 33.33% टाइम के लिए वो कंडक्ट करेगा, दैट मींस 1/3 ऑफ फ्रैक्शन ऑफ साइकिल, ओके 1/3 ऑफ, ओके 1/3 फ्रैक्शन ऑफ ए साइकिल, 1/3 फ्रैक्शन ऑफ ए साइकिल डायोड विल कंडक्ट, ओके। सो सब कुछ डिपेंड करता है बायस वोल्टेज पे, अभी 12 वोल्टेज लगा दिया तो हमको 1/3 मिल गया, यहाँ पे 18 लगा दे 9 लगा दे तो कम करेगा तो कंडक्शन टाइम बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ाएगा तो कंडक्शन कम होगा। तो ऐसे आप एग्जाम में रेशियो निकाल सकते हैं कि 8 वोल्ट 9 वोल्ट के लिए इतना टाइम है और इतना फ्रैक्शन चलता है, और 12 के लिए इतना है, तो दोनों का रेशियो निकालो, टाइम निकालो। तो ऐसे ही इस वोल्टेज को, जो बायस वोल्टेज है उसको चेंज करके हम लोग कंडक्शन टाइम को चेंज कर सकते हैं, ओके। तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है, आगे चलें। हाँ सर। Yes. सर वो मैक्सिमम रिवर्स बायस वाला भी करना है ना? हाँ मैक्सिमम रिवर्स पास कितना आएगा, जब मैक्सिमम रिवर्स पास कितना हो जाएगा, 0. जीरो कहाँ से हो सर जाएगा। 0. हाँ सर वो तो कंडक्ट करेगा नहीं था। तो अच्छा वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम रिवर्स बायस सर मैक्सिमम, रिवर्स हाँ तो ठीक है 0 हो जाएगा, कर लेना तुम लोग, ठीक है, रिवर्स वाला कर लेना, वो तो आसान ही है, कितना लग रहा है उसके ऊपर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, एक सर्किट दे रखा है, डायोड दे रखा है, ठीक है, एंड देन वी हैव गिवन वन रेजिस्टेंस ऑफ 2 मेगा ओम, एक बैटरी लगा रखा है 5 वोल्ट्स, और यहाँ पर ठीक है मुझसे पूछा है वी आउटपुट, और यहाँ पे दे दिया है एक स्क्वायर वेव दे दिया है 50 वोल्ट्स माइनस 50 वोल्ट्स, ओके 50 वोल्ट्स की एक पल्स दे दी है, और बोल दिया है कि जो कट ऑफ वोल्टेज तो 0 है, कट ऑफ वोल्टेज 0 है, बट रेजिस्टेंस दे दिया है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दे दिया है RF, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसका रेजिस्टेंस 0 है, ओके, और डायोड अगर रिवर्स बायस है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 3 मेगा ओम है, ओके, पीस वाइज लीनियर मॉडल है ना। तो अभी क्या है, इसको आप लोग क्या है रिवर्स बायस में ओपन नहीं कर सकते हो,
ओपन का मतलब क्या होता है, अभी करंट 0 हो गया, तो इसने ओपन की जगह पे क्या बोल दिया है कि 3 मेगा ओम रेस्ट रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो वो वैसे करंट को ऑलमोस्ट 0 कम कर ही देगा। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहा है कि हाँ आउटपुट निकालो। ये आपको वी इनपुट दे दिया है, वी इनपुट आपको दे दिया ऐसा, ठीक है, 50 वोल्ट से -50 वोल्ट। ओके, आपको पूछता है कि मेरा अपना आउटपुट निकालो। ठीक है, कैसे निकालोगे आउटपुट? पहले फॉरवर्ड बायस में देख लेते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? अच्छा फॉरवर्ड बायस कह रहा हूँ, सॉरी, प्लस 50 वोल्ट जब अप्लाई करते हैं तब देख लेते हैं। प्लस 50 पे लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। यस सर। ठीक है, प्लस 50 वाइट्स में ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? 3 मेगा ओम रेस्ट से। 3 मेगा में इससे रिप्लेस कर दो इसको। ओके, सो ये 3 मेगा ओम से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो रिवर्स जब जब पॉजिटिव वर्ड लग रही है, पॉजिटिव ऐसे लग रहा है ना, अब लगा दो तुम्हारा इसको निकाल दो, कितना आएगा आपका करंट, कितना आएगा आपको 9 आउटपुट माइक्रो। भी करना भी आपको, हमको चाहिए आउटपुट चाहिए ना, ये आउटपुट, आउटपुट मतलब 5 प्लस इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो इसमें करंट चाहिए हमको, तो करंट कितना आ जाएगा? ये हमारा 50 है, 50 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5, तो 45 ये मेगा ओम है, 45 डिवाइड बाय 5 मेगा ओम, दैट इज 9 माइक्रो एम्पीयर करंट आ रहा है। ओके, और मेरा वी आउटपुट कितना आ जाएगा? वी आउटपुट आ जाएगा मेरा 5, एक तो 5 तो यही है, 2 मेगा ओम, ओके, इनटू करंट 9 माइक्रो एम्पीयर प्लस 5। ओके, सो ये हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, 18 वोल्ट्स प्लस 5 23 वोल्ट्स। दैट मीन्स मैं अगर 50 वोल्ट लगा रहा हूँ, मुझे कितना मिल रहा है? 23 वोल्ट्स। 23 वोल्ट। ओके, सर 5 माइनस में नहीं होगा सर? 5 माइनस में क्यों होगा? अभी ये मैं वोल्टेज यहाँ से ले रहा हूँ ना, अपोजिट है। अभी ये करो ना, अभी यहाँ से, भी तुम ऐसा लगाओ। करंट डायरेक्शन तो सर ऐसा है ना? हाँ, तो लगाओ ना, ये हाँ प्लस, सर ये प्लस प्लस भी, ये प्लस, तो 5 भी लगा दो। तुम कंफ्यूज क्या होते हो बार बार को? ये माइनस आएगा, माइनस। ये वी इनपुट माइनस आएगा, सर। तो -50 प्लस 5 इंटू आई मेगा ओम। यस सर। ओके, प्लस 5 बैटरी इक्वल्स टू 0। ओके, हाँ, सर ये बैटरी 5 वोल्ट की बैटरी का करंट तो 2 ओम की तरफ को जाएगा ना सर? अरे हम तो केवीएल, हम तो ये 50 है, ये प्लस, ये 50 है। ओके, माइनस प्लस 50 है। अब मैं सब केवीएल लगा रहा हूँ, केवीएल कैसे लगाएंगे? सर केवीएल लेकिन माइनस, सर हाँ हमारी जो मेन बैटरी का करंट तो 3 मेगा ओम की तरफ को जा रहा है, हाँ, तो ये डायरेक्शन होगी। भी यहाँ से आ रहा करंट, इसके कारण 50, इसके कारण इधर उल्टा जा रहा है, तभी तो 50 माइनस 5 किया। 5 का नेगेटिव तो किया ना, नेगेटिव किया ना, 50 माइनस 5 तो किया है। जब उधर ले जाएंगे करंट को निकालेंगे तो 50 माइनस 5 ही आएगा, इफेक्टिव तो 50 माइनस 5 ही आएगा। नोट की। हाँ ठीक है ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा? ये तो रिवर्स बायस में ये डायोड है, ठीक है, अब ये रिवर्स बायस है, माइनस है, ये प्लस है, शॉर्ट कर जाएगा ना सर? वेरी गुड, शॉर्ट कर जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो गया, शॉर्ट कर जाएगा। Forward bias हो शॉर्ट में 0 दे रखा रेजिस्टेंस, ठीक है, हम्म, तो अभी जो इनपुट आएगा वही आउटपुट आएगा, क्योंकि अब तो कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं है, जो इनपुट लगा रहे हैं वही आएगा, बस साइन बदल जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस जो 50 वोल्ट लगा रहे हैं वो यहाँ, अब इसके यहाँ माइनस इधर आ जाएगा। अच्छा सर, ये जो 50 वोल्ट आएगा इस पे ये 5 वोल्ट का कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये जो 50 वोल्ट आ रहा है इस पे ये 5 वोल्ट वाला कोई इफेक्ट होगा कि नहीं भाई होगा? वो तो तुम निकालो ना, अभी तुम करंट निकाल, अभी तुम वापस करंट निकाल लो ना, पहले 5 मेगा में रेजिस्टेंस हो रहा था, अब 2 मेगा में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वैसे करंट निकालोगे तो वैसा का वैसे हो केवीएल जाएगा। निकाल के देखते हैं। हाँ, वैसा का वैसा आ हाँ जाएगा। सर, एक बार निकाल के दिखाइए। फिर करंट निकाल लो अभी, ठीक है, 50 माइनस 5 अपॉन 2 मेगा ओम। हाँ Okay. सर। हाँ, सर अगर केवीएल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो माइनस का 50 और माइनस का 5 प्लस आई आर इक्वल्स टू 0। एंटी क्लॉकवाइज लगाए, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ सर, एक बार एंटी क्लॉकवाइज लगा के देखिए सर। एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब की हमारी बैटरी कैसे है,
अभी हमारा बैटरी ये है ना माइनस हाँ प्लस सर। ऐसे बैटरी है ना हमारा यस सर। एंटी, तो एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं मतलब तुम मोटर ऐसा लगाओ है ना, यस सर। तो ये -50, ओके, फिर सर। ये -5, यस सर। अच्छा ऐसे उल्टा प्लस आई आर। प्लस प्लस IR, ठीक है, फर्स्ट 0। करके देखो कैसा आंसर कितना आ रहा तो है इसका करके। 55/2 आ रहा है सर। हम्म तो 55 आई बाई टू 2 होगा ना, इंटू 2 प्लस 5, 55/2 आएगा ना। मतलब सर हाँ 60 वोल्ट आ रहा है आउटपुट। 60 वोल्ट उड़ा रहा है। 55 हाँ सर। 55/2 आ रहा है सर। नहीं आई 60, आई करंट करंट एक चेक कर लो 60 करंट। हाँ तो फिर अभी अभी ये रिवर्स हो जाएगा ना भी अभी ये तुम करंट ऐसे चला रहे हो तो ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, और ये माइनस है ये प्लस है, तो अभी इनका ये 55 -5 हो जाएगा ना, हाँ यस सर, यस सर, ये राइट। यहाँ का डायरेक्शन यहाँ का डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक यस है, सर। तो ये टोटल तो ये आएगा जो यहाँ पे है वही आएगा, ठीक है, तो -50 वोल्ट सर से आए ये समझ नहीं आया सर, एक बार फिर तुम से निकाल बता दो। निकाल के देखो ना भाई, ये -50 वोल्ट, ओके, ये -5 वोल्ट प्लस I इंटू 2 मेगा ओम इक्वल्स टू इक्वल 0, टू 0। ओके ओके, सर। सो I तो इंटू मेगा, -55। यस तो सर। आई प्लस इक्वल्स 55/2 टू। 10⁻⁶, ओके, कितना आएगा ये ये, तो आ गया। इतना आ गया, ठीक है, हाँ। अब निकालो रजिस्टेंस, अब निकालो तुम्हारा V आउटपुट कितना आएगा, V आउटपुट, ओके, V आउटपुट क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका 55/I इंटू 2। ये 55। ये तो माइनस, अभी ये माइनस है ना, तो प्लस 5 वोल्ट्स माइनस, ओके, 2 मेगा ओम इंटू I, ओके, सो 5 -2 मेगा ओम, I कितना है तुम्हारा 55/2 इंटू 10⁻⁶, ओके, सो इससे ये कैंसिल हो गया, ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 50 आ गया। अच्छा, वी नॉट निकालने के टाइम आपने 5 - 2 इंटू आई किया। भैया अच्छा जी। डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना, भी अभी ये माइनस प्लस है, पहले दोनों एक ही दिशा में थे, अभी ये क्या है, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, तो वोल्टेज तो इन दोनों का अब यहाँ पे तुम केवीएल लगा दो ना, भी अब तुमको यहाँ वोल्टेज पता चल गया, ठीक है, आप सब भूल हाँ। जाओ, यहाँ तुमको वोल्टेज पता चल गया, अब यहाँ पे तुम केवीएल लगा लो, ठीक है, तो ये माइनस, ये मैं एंटीक्लॉक लगा रहा हूँ, माइनस प्लस तो माइनस V नॉट, ओके, फिर ये माइनस यहाँ पे सपोज V1 है, -V1, ओके, और +5 + 0, तो V नॉट क्या हो जाएगा, -V1 + 5 हो जाएगा, और V1 तुमने निकाला ही अभी 50, ठीक है, तो ये 60 और 55 निकाला ही तुमने अभी, तो 55 2 अभी निकाला ना, करंट इंटू 2, तो 55 आया ना, हाँ। तो 55 + 5 माइनस के 50 वोल्ट्स। अच्छा। क्लियर है सबको? यस सर, Yes, और sir. Yes, sir. क्लियर हुआ सर। अब एक एग्जाम गेट में आया है, okay, so what they are saying, they are given input, sign input they are given, okay, V input, this is my V input, okay, and they have given this circuit this way, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी आसान क्वेश्चन है। डायोड दिया ऐसे करके, and then they have given diode such a way, okay, and this is R, V out, okay, so they are saying calculate V output for given V input, okay, आपको V input दे दिया है, ओके, दिस इज V input, अब बोल रहा है कि V output निकालो, तो कैसे निकालोगे इसको ड्रॉ कर लो, इसको पॉजिटिव साइकिल के लिए पहले देख लेंगे। सर्किट को सिंपलीफाई कर लो, सर्किट को सीधा कर लो ना, ये ऐसा करके यहाँ से कर लो, ठीक है, पहले सिंपलीफाई कर लो सर्किट को, तो सर्किट में क्या है, डायोड है, ठीक है, डायोड के बाद में ये टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ प्लस टर्मिनल है, और प्लस टर्मिनल से फिर क्या है,
हम प्लस टर्म ये यहाँ पे वी आउट, यहाँ पे वी आउट है, रेजिस्टेंस ये वी आउट है, और प्लस से फिर डायोड है, डायोड, बस ये सर्किट सिंपलीफाई हो गया। ये हो गया प्लस माइनस, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस प्लस है, जबकि माइनस प्लस है वी आउटपुट। शिवेश माइक बंद कर लेना प्लीज। भाई सर्किट को इसको ड्रॉ, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया, इसका वापस इसको सिंपलीफाई कर दिया। यहाँ से चल रहा है सर्किट, ये माइनस आ रहा है तो ये सीधा सीधा आ गया माइनस, ठीक है। फिर ये प्लस प्लस से जा रहा है, ये डायोड करके माइनस आ रहा है, इसको सॉल्व कर दिया। अब तुम लगाओ पॉजिटिव, अब पॉजिटिव साइकिल में ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो क्या, तो यहाँ पे कितना आएगा आपको, बस जो लगा रहे हैं वही आएगा। हाँ सर। जो और रिवर्स साइकिल में ये ओपन हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। पर लेकिन साइन उल्टा आएगा, फॉरवर्ड बायस में हम बी इनपुट लगा रहे हैं और वी ये टर्मिनल उल्टे हैं, ओके। तो वी आउटपुट क्या आ जाएगा आपको, माइनस वी इनपुट आएगा। तो जब क्वेश्चन का आंसर आएगा, सो दैट इज रिवर्स में तो कुछ है ही नहीं, ये आपका ये आ जाएगा, रिवर्स में कुछ नहीं है, तो ये वाला आंसर है आपका, ठीक है। दिस इज वी मैक्स ये माइनस वी मैक्स, ओके। सो दिस इज द आंसर, क्लियर है सर ये फॉरवर्ड में तो हाँ सर, ये फॉरवर्ड में ये कंडक्ट दोनों करेगा ना। शॉर्ट हो रहे हैं, ये टोटल होगा ना। भी फॉरवर्ड में कंडक्ट कर रहा है। अब हाँ सर। आइडियल डायोड है, ये कंडक्ट कर गया, ये भी कंडक्ट कर गया, ठीक है, कंडक्ट कर गया, तो ये वी इनपुट इक्वल टू वी आउटपुट आएगा, ठीक है। यस सर। और ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, साइन अच्छा, उल्टा, yes sir, yes sir. साइन उल्टा हो गया, यस सर। ठीक और है। सर रिवर्स बायस में एक बार बताते हैं, ये रिवर्स रिवर्स बायस बायस में रिवर्स बायस में ये ओपन हो गया, ये भी दोनों ओपन हो गया, ओपन हो जाएगा। तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, या जीरो, तो वी आउटपुट 0 हो जाएगा, क्लियर। यस सर। यस सर। Okay. So tomorrow we'll do clampers and small signal circuit of diode. Okay. So last question है, कर लो आज. This is current source is given. Okay. Current source of. Okay. Current का source का वैल्यू नहीं दे रखा है क्या? Okay. Current source is given and then 1 milliampere. This is 1 milliampere source. Okay. And then we have given one circuit, Wheatstone bridge. And here we have diode. Okay. Here one resistance. This is 2 kilo ohm. Okay. This is 3 kilo ohm. This is 1 kilo ohm. And this is the Wheatstone bridge. So this is 4 kilo ohm. Okay. And here we have one more resistance. Resistance is 6 kilo ohm. Okay. And this is connected to this one. Okay. So he asking this 4 kilo ohm, what is the current value flowing in 4 kilo ohm resistance? I have to calculate. Okay. करो कैलकुलेट। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत खूब किए होंगे 12th में। सर ये तो Wheatstone ब्रिज है डायरेक्टली। Wheatstone ब्रिज है ना, तो ये बैलेंस है, Wheatstone ब्रिज बैलेंस की नहीं है। हाँ सर, बैलेंस है। 3/2/6, तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं। नो सर। ठीक है, जो करंट आएगा बस यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो आपको ये वाला करंट निकालना है बस। कितना जाएगा, यही करंट जो आएगा यहाँ से, यहाँ आई आ रहा है 1 मिलीएम्पियर टोटल करंट आ रहा है, और ये दोनों पैरेलल सर्किट है। ठीक है, ये तो ओपन हो जाएगा, यहाँ कोई करंट ओपन मतलब करंट जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ओपन ही मान लो। तो अब ये एक सर्किट है, यहाँ पे 3 किलो ओम, 6 किलो ओम, 0.6 मिलीएम्पियर और एक 2 किलो ओम और एक 4 किलो ओम। ठीक है, आई आ रहा है आपका 1 मिली एम्पियर। कितना आंसर 0.6 मिली एम्पियर आएगा। बाकी लोगों को भी आ रहा है? Yes, 0.6 आ रहा है। भी कैसे निकालेंगे, इसमें निकालना है तो रेजिस्टेंस इसका लेंगे। ठीक है, आई इक्वल टू रेजिस्टेंस इसका। ओके,
टोटल करंट 1 मिली एम्पियर इंटू रजिस्टेंस इसका 3 6 9, टोटल रजिस्टेंस 3 6 9 और कितना 9 और 6 15 15 तो 3 ओके 5 सो 3/5 मिली एम्पियर दैट इज 0.6 मिली एम्पियर okay so tomorrow we'll start with clampers and we see how when we apply AC to diode, okay, when we apply AC signal to diode, okay, then those question how to handle, okay. जब भी डायोड पे क्या होता है, डायोड में दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक तो होता है डीसी रेजिस्टेंस, ओके, फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूँ. सो फॉरवर्ड बायस में क्या है, suppose this is my ID and this is my VD, okay. So if I plot forward bias curve, it's exponential curve, so depending on my VD value I'll get current, okay. So this is my operating point, okay. So Q, this is called operating point, okay. And resistance value कितना हो जाएगा, resistance value हो जाएगा VD upon ID. तो जितना मेरा वोल्टेज होगा तो हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है. दैट मींस जितना ये डीसी वोल्टेज है, सो इफ आई एम अप्लाइंग डीसी वोल्टेज टू अ डायोड, ओके, सपोज ये मेरा डायोड है और इस पे मैं कुछ डीसी वोल्टेज लगा रहा हूँ, ओके. सो डीसी वोल्टेज लगाते क्या हो जाएगा, मेरा ये क्यू पॉइंट फिक्स हो जाएगा, उसमें कितना रेजिस्टेंस है दैट विल फिक्स. इसके लिए मेरे इस वीडी के लिए कितना आईडी सर्किट में आएगा दैट इज फिक्स्ड, ओके, क्योंकि फिक्स ये वीडी बाई आईडी, तो दिस पॉइंट इज फिक्स. अब इसी सिग्नल में अगर मैं इस बैटरी के साथ में कोई एसी सोर्स लगा दूं, ओके, इस बैटरी के साथ में फिक्स बायसिंग के साथ में एक स्मॉल सिग्नल लगा दूंगा. स्मॉल सिग्नल मींस जिसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो क्या करेगा, जैसे मैं एसी लगा रहा हूं तो मेरा ये क्यू पॉइंट क्या करेगा, जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज में थोड़ा सा बढ़ते ही करंट भी डिवाइड करेगा, ये पॉइंट डिवाइड करेगा यहां से यहां तक, ओके. सो आई विल गेट दिस चेंज इन करंट वर्सेस चेंज इन वोल्टेज, ओके. सो that my diode will give some AC resistance, okay. So when my diode is biased and I'm applying small signal amplitude of AC, okay, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम आते हैं, उनको कैसे डील करते हैं दैट विल सी टुमारो, ओके. तो Q कोई पॉइंट है क्या इसमें? ये क्यू भी कुछ सर्किट पे वैल्यू है ना भी अच्छा, इस कोई वीडी पे value इतना है. आईडी है, तो ये क्या है, यहाँ वीडी क्या है, दिस इज वीडी आईडी एक्स वाई, ये पॉइंट ही तो है, वही तो. ओके सर. ठीक है. सो वी विल सी टुमारो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड probably clampers also, okay. Thank you. Yes, sir. चैट में क्या आ रहा है, ओके. थैंक यू सर.